Hello everyone. So welcome to our new lecture. This is the lecture for standard 10th geometry. We are discussing chapter number 1, similarity. Okay, and in the previous lectures we have studied the introduction of this chapter, what is similarity, what is similar triangles. Okay, and we have seen the basic proportionality theorem, and also we have seen the converse of the basic proportionality theorem, that is converse of BPT. Now in this particular lecture we are going to study the angle bisector property or angle bisector theorem, we can say. Okay, so we are going to see what is this angle bisector property of a triangle. Now the statement of the theorem first, we will see what is the statement. The bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. What is the statement? The bisector of an angle, okay, so there is one angle, okay, which have been bisected. Bisected मतलब क्या? Bisector मतलब क्या? ऐसी रे जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ओके, सो सपोज ये एंगल ए बी सी है और रे बी डी में ड्रॉ करता हूं, तो ये जो रे बी डी है वो क्या करने वाला है? व्हाट इट इज गोइंग टू डू? It is going to divide this angle ABC into equal angles. दो equal angles में क्या करेगा? वो divide कर देगा. So I will get angle ABD is equal to angle DBC. So it is nothing but the bisection or bisector of an angle. So यहाँ पे statement क्या है? The bisector of an angle of a triangle. So there is one angle, okay, and that angle from a triangle has been bisected. It will divide the side opposite to the angle. So suppose मैं एंगल C को bisect करता हूं, तो इसके अपोजिट वाला साइड कौन सा है? साइड AB है. तो वो क्या करेगा? उसको डिवाइड इस तरीके से करेगा. इट इज गोइंग टू डिवाइड द अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स. इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड. जो प्रोपोर्शन होगा रिमेनिंग साइड का और इस सेगमेंट का साइड ए बी का डिवाइड होने के बाद वो क्या होगा? सेम होगा. ओके, सो व्हाट वी विल डू फर्स्ट थिंग इज दैट बाय लुकिंग एट द थ्योरम और बाय रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. सो द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. तो सबसे पहले ट्राइंगल नीडेड था, सो वी हैव ड्रॉन अ ट्राइंगल ए बी सी. ओके, then one of the angle has to be bisected, so I am bisecting this angle C. Okay, angle C को मैंने क्या किया हूं? bisect किया हूं. Okay, at point consider at point E. point E पे क्या किया हूं मैंने? एंगल C को bisect किया हूं और वो जो bisecting ray है वो point E को इंटरसेक्ट कर रहा है साइड AB पे. ओके, बाइसेक्ट क्या मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों भी क्या हो गए? हमारे सेम हो गए. दिस टू एंगल्स आर इक्वल. ओके, एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ECB. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट. सो हम लोग को गिवन सबसे पहले लिखना होता है. सो फर्स्ट वी हैव टू नोट डाउन द गिवन फॉर एनी थ्योरम. व्हाट इज द गिवन? देयर इज वन ट्राइंगल. सो ट्राइंगल in triangle ABC, okay, angle C is bisected. okay, angle C क्या है? bisect किया है हमने. bisected by ray CE. okay, angle C को bisect किया हम लोग ने with the help of ray CE and point C is lying on the side AB. okay, सो दिस इज द गिवन. ये क्या है? हमारा गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट दैट पर्टिकुलर एंगल बाइसेक्टर इज गोइंग टू डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. सो AE अपॉन EB क्या है हमारा? AE अपॉन EB. ये क्या होगा? ये जो रेशियो है वो क्या होगा? रिमेनिंग टू साइड का जो रेशियो है दैट इज AC अपॉन CB
दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों भी रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CB। नाउ for proving this particular theorem there is a need of construction. Okay, we have to construct certain lines and segments to prove this particular theorem. So what we will do, we will extend this side AC, side AC को मैं क्या करूंगा, extend करूंगा, okay, and I will draw a parallel line from point B and that parallel line is going to parallel to the CE। एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो CE को क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, सो आई हैव ड्रॉन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द एक्सटेंशन ऑफ AC एट पॉइंट D। ओके, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। सो आई विल नोट इट डाउन, कंस्ट्रक्शन। Okay, so what we will do, what is our construction, we are extending, so extending AC, क्या किया हम लोग ने, AC को एक्सटेंड कर रहे हैं एंड ड्रॉइंग BD पैरेलल to CE, okay, and BD is intersecting the extended AC at point D। जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए हैं, जो हम लोग ने एक्स्ट्रा अजम्पशंस कंसीडर किए थ्योरम को प्रूव करने के लिए, उसको हम लोग ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में लिख के लिया। ओके, एक्सटेंडिंग AC एंड ड्रॉइंग BD पैरेलल टू CE एंड BD इज इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड AC एट पॉइंट D। ओके, नाउ फ्रॉम आवर कंस्ट्रक्शन वी कैन से दैट CE इज पैरेलल टू BD। ओके, and this CB is going to a transversal and this AC is also going to a transversal for these two parallel lines। ट्रांसवर्सल क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और वो दोनों पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, डिवाइड करती है, तो वो लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ये क्या हो जाएगी, हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ओके, and we have studied about this transversal and all these lines in the 9th standard। So what we have to do, we have to prove it now। So proof, from the figure we can say that CE is parallel, okay, segment CE is parallel to segment BD। सेगमेंट CE और सेगमेंट BD क्या है, पैरेलल है। एंड फर्स्ट वी विल कंसीडर AD एज ट्रांसवर्सल। AD को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे। सो सेगमेंट CE इज पैरेलल टू सेगमेंट BD एंड AD, ओके, वी विल टेक सेगमेंट AD इज ट्रांसवर्सल। ओके, सेगमेंट AD क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल है। सो वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। इन दिस फिगर यू कैन सी एंगल ACE, एंगल ACE is congruent to एंगल CDB। एंगल ACE और एंगल CDB दोनों भी क्या है, इक्वल है। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये CE और BD पैरेलल लाइंस है और AD क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो एंगल ACE का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल CDB है। क्या है, एंगल CDB। सो आई विल राइट एंगल AC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। ओके, दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग
एंगल्स। सो एंगल ACE और एंगल CDB क्या है, इक्वल हो गए। ओके, नाउ वी विल कंसीडर CB एज अ ट्रांसवर्सल। सो टेकिंग CB एज ट्रांसवर्सल, CB के हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहे हैं। सो अभी CB को मैंने ट्रांसवर्सल कंसीडर किया हूं, तो आप लोग देख सकते हैं एंगल ECB, एंगल ECB और एंगल CBD ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रीजन क्या है, दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी सेम। व्हाट इज द रीजन, these are the alternating angles for a transversal and these two parallel lines. So angle ECB और angle CBD क्या है, alternating angles है, तो वो भी क्या है, congruent है एक दूसरे से। So I will write angle ECB is congruent to angle CBD. रीजन क्या हो जाएगा इसका, alternate angles। ओके, सो हमें पहला इक्वेशन क्या मिला, एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB, और दूसरा क्या है, एंगल ECB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD। नाउ फ्रॉम द गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज बाइसेक्टेड बाय रे CE। बाइसेक्शन हुआ है, इसका मतलब क्या है, एंगल ACE और एंगल ECB इक्वल है। सो एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB, दोनों भी एंगल्स इक्वल है। सो इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम द गिवन हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, देखो ACE और ECB दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इन बोथ द इक्वेशन ACE और ECB इक्वल है, ये हमें कैसे समझ में आ रहा है, फ्रॉम द गिवन। ओके, ACE और ECB इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी इक्वेशन के इक्वल है, तो उनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। So from 1, 2 and given हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल CDB is congruent or equal to एंगल CBD। एंगल CDB और एंगल CBD क्या है, हमारा इक्वल है। ओके, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल। Okay, now take the triangle CBD. In triangle CBD, triangle CBD में एंगल B और एंगल D दोनों भी क्या है, सेम है, इक्वल है। तो हम लोग को आइसोस्केल्स ट्रायंगल थ्योरम मालूम है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स सेम है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। सो देयरफॉर सेगमेंट CB इज इक्वल टू सेगमेंट CD। सेगमेंट CB इज इक्वल टू सेगमेंट CD। CB और CD क्या हो गए, दोनों भी इक्वल हो गए। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। साइड्स क्या है, वो ऐसे साइड्स है जो दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के अपोजिट है। ओके, सो इसलिए सेगमेंट CB और सेगमेंट CDB क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, सो फ्रॉम दिस नाउ वी टेक ट्रायंगल ABD। हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ABD लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABD, in triangle ABD, CE is parallel to the base BD। अगर मैं BD को बेस कंसिडर कर रहा हूं या फिर साइड कंसिडर कर रहा हूं, एक साइड है वो ट्राइंगल का, सो CE क्या है, BD से पैरेलल है। ओके, सो CE पैरेलल BD। ओके, सो यहां पे हम लोग एक थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय BPT, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AE अपॉन EB इज इक्वल टू
AC अपॉन CD, AE अपॉन EB क्या होगा, AC अपॉन CD के इक्वल होगा। सो AC अपॉन CD लिख दिया हम लोग ने। अगर ट्रायंगल ABD हम लोग लेते हैं तो उसमें CE क्या है, BD से पैरेलल है, तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे बाय यूजिंग द बीपीटी, सो AE अपॉन EB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AC अपॉन CD मिलेगा। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 CB और CD क्या है, दोनों भी इक्वल है। CB और CD क्या है, इक्वल है। हमें ये इक्वेशन 4 से समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AE अपॉन EB लिख दिया हम लोगों ने, AC लिख दिए, और CD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, CB लिख सकता हूं। तो हम लोगों ने प्रूफ किया है कि CB और CD भी क्या है, इक्वल है। सो आई एम राइटिंग CB इन प्लेस ऑफ CD। सो मुझे क्या मिला, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB मिला। हमें क्या प्रूफ करना था, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। हो गया प्रूफ वहां पे। सो वी विल राइट हेंस प्रूव्ड। ओके, so this is the angle bisector property or angle bisector theorem, where we get whenever a bisector of an angle for a triangle divides the side opposite to the angle, so the ratio which is created from that side is going to be equal to the ratio of the remaining sides. Okay, so this is angle bisector property. In the next lecture we are going to solve some questions regarding this BPT, converse of BPT and angle bisector property. Okay, homework for this lecture is going to be, you have to write down this particular theorem. Okay, note down the theorem from the textbook in your notebook. Okay, so we will meet in the next lecture. Thank you.